Good morning, everyone. Okay, so today we are going to discuss topic mixture, and actually this is advanced version of ratio. Vishnu Girdhar, you are in first time in this class. Vishu. Yes, sir. Very good morning. I have recently joined around 1 day before yesterday. So technically, yes. For once, this is my first class. Okay. So the basic concepts of mixture, generally, which type of questions asked in this chapter? So, like, read the language of this question. Wait. Yes, read the language of this question. Yes. It means generally two different type of quantities. One is superior, definitely other one is inferior, and इन्हें मिक्स करके आपको एक मिक्सचर का कॉस्ट जनरेट करना है. सो किस रेशियो में दोनों को मिक्स करें कि मिक्सचर का कॉस्ट एक एवरेज वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा इसमें जनरेट हो जाए. To solve this type of question, there are two different concepts. One is formula method. Formula says ratio of cheaper to dearer. Obviously, cheaper means सस्ता, dearer means महंगा. That is equal to cost price of dearer minus mean price or mixture price upon mixture price minus cost price of cheaper. फॉर्मूला नोट डाउन कर ले. Ratio of cheaper to dearer is equal to cost price of dearer minus mean price upon mean price minus cost price of cheaper. Noted? Yes. So now your question says, in what ratio shopkeeper mixed two types of rise of cost, rupees 6.20 and 7.20? It means cheaper value in this question is 6.20. Dearer is 7.20 per kg. और इन्हें मिक्स करके मिक्सचर का कॉस्ट जनरेट करना है 6.50. सो इन विच रेशियो आप मिक्स करेंगे इसे? To get this ratio, your formula says ratio of cheaper to dearer, that is equal to cost price of dearer, it is 7.20 minus mixture cost, it is 6.50 upon mixture cost 6.50 and cheaper cost is 6.20. So your difference value is 0.70 in numerator and 0.30 in denominator. After solving this one, you will get 7:3. So the correct answer for this question is 7:3. And this is the ratio for cheaper to dearer. It means 6.20 wala 7 kg and dearer quality means 7.20 wala 3 kg. अगर आप mix करते हैं, so mixture का cost 6.50 generate हो जाता है. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir.
Now, abhi same question hai. Tell me the answer for this one. In what ratio shopkeeper makes two types of rise of cost rupee 10 and 7.50 so that mixture be worth rupee 8.25? So dearer value is 10, cheaper is 7.50, and mixture should be 8.25. So the correct answer according to you? ऋषिका, आप ऑडिबल नहीं थी, आपका वॉइस नहीं आया. Sir, 7:3. 7:3, yes. Yes, Manjeet, Soloni, 7:3. Vishu. Yes, sir. Yes, sir. 7:3. So according to formula says cheaper to dearer. That is dearer, it means 10 minus mixture 8.25 upon mixture value is 8.25 minus cheaper is 7.50. So 1.75 and 0.75. So your ratio is again 7:3. But the correct answer for this question is 3:7. Why the answer is 3:7? देखिए, in the previous question में कहा था cheaper को dearer से mix करना था. In this question 6.20 को 7.20 से mix करना है. It means cheaper value को dearer value से mix करना है, and according to formula your ratio is 7:3. But in this question देखिए important क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 10 रुपीज पहले है और 7.50 बाद में है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डियरर टू चीपर का रेशियो रिक्वायर्ड है. देखिए ऐसा वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं. ऑब्वियसली जिसका वैल्यू पहले आएगा रेशियो भी उसका पहले आएगा. सो चूंकि क्वेश्चन में डियरर पहले आ रहा है, इट मीन्स करेक्ट आंसर आपको डियरर टू चीपर के फॉर्म में देना है, विच इज इक्वल टू 3:7. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑलवेज आपको चीपर टू डियरर मिलता है. क्लियर? ये एग्जैक्टली वैसा ही डिफरेंस है कि आपने मिल्क में वाटर मिलाया या वाटर में मिल्क मिलाया. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और अब आप क्रॉस मेथड पर अगर चलते हैं, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन आपको बोला था 6.20 एंड 7.20. आफ्टर मिक्सिंग दीज टू आपको जनरेट करना है 6.50. 6.50. चीपर टू डियरर वर्क वही करना है जो फॉर्मूला कहता है. फॉर्मूला क्या कहता है? आपको डियरर में मिक्सचर एंड मिक्सचर में चीपर सब्ट्रैक्ट करना है, बट क्रॉस में वैल्यूज को लाना है. सो डियरर माइनस मिक्सचर, दिस इज 0.70, एंड मिक्सचर माइनस चीपर, दिस वन इज 0.30, एंड रेशियो ऑफ दीज टू इज 7:3. एंड इन द नेक्स्ट वन, अभी आप यहां देखिए, आपको फर्स्ट दिया था डियरर एंड सेकेंड दिया है चीपर. इन्हें मिक्स करके आपको 8.25 जनरेट करना था.
So again, dearer minus mixture, this is 1.75 and mixture minus cheaper, this one is 0.75 और directly आपको वही ratio मिलता है क्योंकि आप ले भी उसी according रहे हैं, dearer to cheaper. I think now clear everyone? आप सब ऑडिबल नहीं है, ऐसा क्या है भाई? Yes. Sir, clear. Okay. Now third question again based on same concept, but this time your language says, in what ratio shopkeeper mix two types of sugar of cost rupees 65 and 60 per kg so that there may be gain of 10%. इसे एक्स्ट्रा मैनेज करना है आपको बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 68.20 पर केजी. यस, इजी क्वेश्चन. तो मंजीत, फॉर दिस क्वेश्चन मिक्सचर की कॉस्ट कितनी है? एक सेकंड. 62 rupees. विशु, मिक्सचर कॉस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज 61.4. नो बेटा. देखिए, एक्चुअली 65 एंड 60 को मिक्स करके, इट मींस डियरर एंड चीपर को मिक्स करके उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 68.20 पर सेल किया, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 10% प्रॉफिट बोला गया है. सो दिस इज द सेलिंग प्राइस. ये मिक्सचर का कॉस्ट नहीं है. ऑलवेज मिक्सचर का कॉस्ट इन द रेंज ऑफ डियरर टू चीपर होगा. इट मीन्स डियरर से ज्यादा नहीं हो सकता, चीपर से कम नहीं हो सकता. ये वैल्यू डियरर से ज्यादा है, इट मीन्स इसमें 10% इंक्लूडिंग प्रॉफिट है. सो मिक्सचर की कॉस्ट विच इज 100% in itself, including 10% profit, it means 110% value of mixture cost, that is equal to 68.20. From this, mixture cost value is 62. Easily divide हो जाता है ना 11 से. 11 6 and 11 2. So mixture cost value is actually 62. And after getting this, now dearer, cheaper, same concept apply करना है. Now your mixture cost value is 62. So the difference is 2 and 3. So the correct answer is 2:3. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी क्वेश्चन में लाइक आपसे बोलते कि 20% प्रॉफिट हुआ, सो मिक्सचर की कॉस्ट का 120% आपको वैल्यू गिवन होती. इन केस 10% लॉस गिवन होता, सो मिक्सचर की कॉस्ट का 90% आपको गिवन होता. सो सेलिंग प्राइस ऑलवेज इस सिचुएशन पर मिक्सचर की कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आएगा. नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सेम लैंग्वेज. इन व्हाट रेशियो shopkeeper mix two types of sugar of cost rupee 30 and 32.5 so that there may be gain of 10 sorry 10%.
by selling the mixture at rupee 34.10. Again, this is the selling price including 10% profit. So actually this value is 110% of mixture cost. So initially calculate the mixture cost value, then find your ratio. Three is to two. So yes, guys, everyone got 3 is to 2. Yes, sir. So actually a mixture cost value is 31 for this question. So 30 and 32.5. The mixture cost value is 31. So the difference is 1.5 and 1. It means clearly this is 3 is to 2. The correct answer for this question is 3 is to 2. Okay, now next question based on profit and loss. Actually मिक्सचर एंड एलिगेशन ये बड़ा काम का चैप्टर है बेटा, इसमें कई अदर चैप्टर्स में भी इसका यूज होगा. Like in this question based on profit and loss, total quantity is given 2000 kg, some part of which he sell at 36% profit and rest at 16% profit. If he gain 28% on whole, find the quantity sold at 16% profit. So देखिए जिस पार्ट पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, treated this part as a dearer. जिस पर कम हो रहा है ऑब्वियसली इसे चीपर की तरह ट्रीट करेंगे और इसे मिक्स कर दिया. सो ओवरऑल प्रॉफिट 28% गिवन है. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर. नाउ आप रेशियो सॉल्व करिए एंड गेट योर आंसर बिकॉज टोटल क्वांटिटी इज गिवन 2000 kg. यस, ट्राई करिए. Yes, guys, anyone got the answer? 1200. 1200. 36 minus 28 is equal to 8. And 28 minus 16 is 12. So your ratio is actually 3 is to 2. So 36% profit part is in 3 ratio and 16% profit part is in 2 ratio. So quantity required for 16% profit. So actually this is 2 out of 5. 800. So out of 2000, definitely this is 1200. Sorry, 800. 800. Clear everyone? 800 kg. Yes.
तो देखिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था, आप यहाँ पर प्राइस के टर्म्स में डील कर रहे थे। सो चीपर डियरर मिक्सचर सब पर प्राइस के टर्म्स में डील किया। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली आप परसेंटेज के टर्म्स में डील कर रहे थे। तो ये याद रखना है कि कंप्लीट वैल्यू डियरर चीपर और मिक्सचर सब पर सेम ही रिस्पेक्ट रहना चाहिए। इट मीन सबके ऊपर अभी परसेंटेज डील कर रहे हैं। लाइक सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम है, सो डू इट केयरफुली। यस, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, स्पीडली आंसर करें। Yes, guys, your answers? 400. 400, okay. 40, 40. 40। हाँ भाई, मैंने कहा 200 तो टोटल है आपका, 400 कैसे हो गया? ऋषिका, सलोनी, आश्वी। 120. 120। Yes, sir, 120. 120। सलोनी? चलिए क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, टू डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट सेल एट 10% प्रॉफिट, रेस्ट एट 5% लॉस, एंड ओवरऑल पर 7% प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिक्सचर। अब आप लोगों ने एज इट इज ट्रीट किया है। एक प्रॉब्लम ये था, इन द प्रीवियस क्वेश्चन योर लैंग्वेज सेज 36% प्रॉफिट एंड 16% प्रॉफिट। सो दोनों केस में प्रॉफिट था, बट इस केस में एक लॉस भी बोल रहा है। सो लॉस को भी अगर आपने पॉजिटिव ट्रीट किया तो कैसे पता चलेगा कि बेटा ये लॉस है? सो लॉस की वैल्यू को आप नेगेटिव पिक करेंगे, तभी तो लॉस पता चलेगा। इट मीन्स 10 minus 7 is 3 and 7 minus minus 5 is 12, which is equal to 4:1. So actually your 5% loss quantity is 1 ratio out of 5, and 1 out of 5 to get total out of 2000, this is equal to, sorry, 2200, this is equal to 40 kg. Okay? Is it clear everyone? Yes, sir. और अगर आपको Yes, sir. ऐसा प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फिर इसको 100 के रिस्पेक्ट में ट्रीट करिए, बिकॉज कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है। 10% प्रॉफिट इट मीन्स 110, 5% लॉस इट मीन्स 95, एंड ओवरऑल पर 7% प्रॉफिट 107। इस तरह से डील करेंगे तब भी आपको रेशियो सेम मिलता है, इट इज 4:1, जिसमें प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अदरवाइज सिंपल है, आपको प्रॉफिट को पॉजिटिव और लॉस को निगेटिव में ट्रीट करना है। आई थिंक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now, as it is same concept पर with mixture method, easily आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन बेस्ड एवरेज के ऊपर है। Yes, do it fast.
So in the question, total 75 students are given. Annual exam में average marks है 35. Average marks of passed students is 55. Average marks of pass students and fail students 55 and 30 just given in this question. और दोनों को mix करने पर get average. Average value is what? This is 35. So easily get the ratio of pass and fail. 5 and 20 means 1:4. And 1:4 is the ratio for pass and fail out of total 75 students. Question want to know only fail students. It is 4 out of 5. So out of 75, it is equal to 60. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Rishika Saloni got it? Yes, sir. Okay, now next question as it is same. Do it fast, beta. Yes, guys. Answer for this. 70? Everyone got 70? Yes, Ashvi, Rishika Saloni. Yes, sir. 70. Yes, the correct answer is 70. Absolutely right. So the average salary of officers and non-officers are given 550 and 120. देखिए दोनों को मिक्स करते हैं, सो क्या क्रिएट होता है? एंटायर स्टाफ और उसका सैलरी गिवन है विच इज 200. So easily ratio आता है in between officers and non-officers. It is 80 and 350. It means your ratio is 8:35. And this ratio is for officers to non-officers. अभी इस क्वेश्चन में कंप्लीट वैल्यू नहीं गिवन है आपको स्टाफ की, आपको ऑफिसर्स गिवन है. ऑफिसर्स की वैल्यू 16 है. इट मीन्स 8 रेशियो का वैल्यू 16 है. So it means 1 ratio is equal to 2. So 35 ratio is equal to 70. It means number of non-officers are 70. This is the correct answer for this question. चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Now comes to important question. Important का मीनिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चंस हैं, बट जनरली अभी तक हम लोग बेसिक्स पर डील कर रहे थे. अब एक्चुअली किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में वो पूछते हैं वहां पर आए हैं हम लोग. So a container contains 70 liter of mixture. In this mixture, milk and water both included, and 60% milk in this mixture. So how much milk should be added to make it 80%? So actually this question is based on simple percentage. Can do it easily. Yes. Speedily try करें.
Yes, guys. Answers? Any problem to solve this? Anyone got 14 liter? Yes, sir. Okay. Yes, Manjeet, Rishika, Saloni, your answers? Sir, 6:1. बेटा 6:1 तो रेशियो आप बता रहे हैं. Yes, sir. Yes, Manjeet. No idea. No idea. Okay. So Ashvi, आपने 14 लीटर कैसे निकाला? So, it's given कि 70 liter mixture है, milk 60% है, तो water, पहले milk की value निकाली 42 liters, हम्म. and then milk होना चाहिए 80% in the same mixture. हम्म. तो उसका 80% होता है 56, तो 56 तो minus 56 minus 42 is 14 है ना? Yes, So डायरेक्टली 20% निकाल देते. 60 से 80 20% का इंक्रीज है, तो 20% ऑफ 70 is 14 है ना? okay, हाँ. नहीं, हाँ नहीं बेटा, ये गलत है पूरी तरीके से. अच्छा. समझिए. रीजन क्या है कि आपने लैंग्वेज को डाइजेस्ट नहीं किया ठीक से. समझिएगा, पहले तो मैं प्रैक्टिकल समझा दूं आपको क्यों रॉन्ग है आपका. सपोज ये कंटेनर है. इन दिस कंटेनर यहां तक सपोज ये वॉट मिक्सचर का लेवल है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 लीटर आपको ये गिवन है, एंड आउट ऑफ द 70 लीटर आपको 60% मिल्क गिवन है. उसने बोला हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड. सो ऑब्वियसली मिल्क जाएगा तो इसी मिक्सचर में ना. सो आफ्टर एडिंग सम मिल्क आपका मिक्सचर का पार्ट डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा. सो अब मिक्सचर का लेवल लाइक यहां तक पहुंच गया, और इस मिक्सचर पर 80% मिल्क होना चाहिए. आप मिक्सचर को कांस्टेंट करके डील कर रही हैं. आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया कि Yes, कहाँ sir. मिस्टेक है. Yes. Yes. हम्म, चलिए, तो अब ये तो पिक्चर क्लियर हो गई. अब आते हैं अपन क्वेश्चन के डिटेल पर. 70 लीटर था complete mixture. Out of the 70 liters, 60% milk. So obviously rest 40% water. 70% 60% it means 42 liter. So rest 28 liter is the quantity of water. According to question, after adding some milk, your milk will become 80%. 80%. So at this position, your water is converted to 20%. Yes or no? Yes. कंप्लीट वैल्यू तो 100% रहेगी. तो अब आपको नोटिस ये करना था कि इन दिस पोजीशन आपका मिल्क ऐड होने के बाद ओवरऑल मिल्क इंक्रीज कर गया, मिक्सचर भी इंक्रीज कर गया, बट वाटर तो कांस्टेंट है. यस और नो? क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में वाटर तो कांस्टेंट है. परसेंटेज चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. एंड फाइनल मिक्सचर पर आप देखें, सो वाटर का परसेंटेज 20 है और मिल्क का 80 है. इट मींस 4 टाइम्स मिल्क की रिक्वायरमेंट है टू गेट दिस मिल्क वैल्यू इज 80%. और 28 का 4 टाइम्स इट इज 112 लीटर. इतना मिल्क होना चाहिए, और 42 लीटर ऑलरेडी है इन दिस मिक्सचर. सो कितना एक्स्ट्रा मिलाना पड़ा? योर करेक्ट आंसर इज 70 लीटर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, मेरे sir. को लगता है कि अभी सबको कंप्लीटली डाइजेस्ट शायद नहीं हुआ है. किसको किसको नहीं हुआ? सर एक बार दोबारा करवा. हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें कुछ
ऐड किया ऐसा फील नहीं आया। अभी देखिए इसमें फीलिंग डाल देते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं, समझिएगा। यहाँ तक तो क्लियर था ऋषिका? 42 मिल्क एंड 28 वाटर, यस और नो? Yes. एक मिनट रुकिए, जरा मैं चार्जर ऐड कर लूँ, नहीं तो स्विच ऑफ ही हो जाएगा। हाँ, so 42 milk and 28 water. After adding some milk, suppose X liter of milk is added. So after adding this milk, your milk percentage is 80 and obviously water 20. It means milk and water now in the ratio 4:1. After cross multiply, you will get the value of X easily. अभी चेक करिए X का वैल्यू क्या आता है। सेवेंटी। So ऋषिका got it? Yes, sir. So ये तो अपन ने डायरेक्टली मेंटली सॉल्व करने वाला प्रोसेस था। अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ मिस्टर एक्स आपने थ्रू रेशियो मेथड ही सॉल्व किया। बट एक्चुअली हम लोग मिक्सचर टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो हम लोग मिक्सचर की हेल्प से भी इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनिशियली आपको मिक्सचर गिवन था, इसमें आपने मिल्क ऐड किया है और अगेन एक मिक्सचर जनरेट हो रहा है, तो दोनों केस में मिक्सचर मिल रहा है। इट मीन्स इसको आप मिक्सचर 1 और इसको मिक्सचर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि मिल्क ऐड कर रहे हैं, सो आप मिल्क के परसेंटेज पे ही बात करेंगे। देखिए कई बार ऐसा भी होगा, जनरली अभी तक क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं उसमें सिर्फ मिल्क और वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या किसी दो डिफरेंट पार्ट्स में चीपर और डीयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बट अगर ऑलरेडी मिक्सचर हुआ, एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर से मिक्स करके तीसरा मिक्सचर जनरेट करेंगे, सो उन मिक्सचर्स के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, लाइक मिल्क और वाटर का मिक्सचर होगा या किसी और का मिक्सचर होगा। तो किसी एक फैक्टर को पकड़ के चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मिक्सचर मिल्क और वाटर का है, सो इधर मिल्क और वाटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और फिलहाल कंडीशन है कि मिल्क मिलाया गया, तो मेरे को मिल्क के ही परसेंटेज पे फोकस करना है। अब ध्यान से समझिएगा, मिल्क का परसेंटेज इन द मिक्सचर 1 इज 60% अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। मिक्सचर 2 में मिल्क का परसेंटेज इज 80%। और ये मिल्क है, मिल्क मीन्स ऑब्वियसली प्योर मिल्क, सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज योर मिल्क परसेंटेज इज 100%। यस और नो? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. So now your ratio is what? 100 minus 80, it means 20, and 80 minus 60, again 20, it means your ratio is 1:1। और ये रेशियो किसका आया? ऑब्वियसली मिक्सचर 1 का विद रिस्पेक्ट टू मिल्क आया। इट मीन्स जितना मिक्सचर 1 था, कितना था? 70 लीटर, उतना ही मिल्क मिलाया जाएगा। करेक्ट आंसर है 70 लीटर। ये हो गया मिक्सचर मेथड। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, 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 sir. sir. यस सर। नाउ अभी सेकेंड क्वेश्चन को अगेन आप मिक्सचर से ही सॉल्व करेंगे। पहले और मिक्सचर के ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं।
Yes, guys, answers. मंजीत बेटा आंसर आया? 10. तुम लोग क्या बोल 10. देते हो? है बेटा? 10. 10. ओके। आश्वी, ऋषिका, सलोनी। देखिए अगेन, Yes, sir. 10. यस, शुगर सॉल्यूशन 1 में आपने शुगर ऐड किया एंड फाइनली क्रिएट हुआ शुगर सॉल्यूशन 2। बिकॉज शुगर ऐड किया है तो परसेंटेज ऑफ शुगर के ऊपर फोकस करेंगे, एंड शुगर परसेंटेज इन द शुगर सॉल्यूशन 1 इज 20%. Make it 25% after adding 100% sugar. It means 75 and 5, which is 15 is to 1. 15 is to 1 for sugar solution 1 and pure sugar. So actually this is 150 gram according to the question. So if 15 is equal to 150, so 1 is equal to 10 gram. So your correct answer is 10 gram. Otherwise थ्रू द बेसिक मेथड मिस्टर एक्स वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन मिक्सचर से सॉल्व कर रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 10 ग्राम. नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्पीडली ट्राई करें. अगेन सेम क्वेश्चन है विद ऑप्शंस. So 520 grams. 520 grams. Yes, sir. Ranjit, Saloni. Yes, sir. 520. So everyone got same? Yes, sir. Okay. Now your next question says, how many kg of sugar costing rupee 9 per kg must be mixed with rupee 27 kg of sugar costing rupee 7 per kg, so that there may be gain of 10% by selling the mixture at rupee this. So again अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी डील कर चुके हैं. यहाँ पर लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, because one quantity is given in terms of kg and other one is required.
This 9.24 is the selling price of this mixture, 81. including 10% profit. Yes, Manjeet, क्या बोला आपने? 81. 80 1. 81 नहीं बेटा, एक बार दोबारा चेक करो, कुछ गड़बड़ है। यस मंजीत, चेंज हुआ? नहीं, एक सेकंड। होने में गर्मी ज्यादा हो गई लग रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। 63 page. Yes, Yes, absolutely right. 63. Very good. So 9 रुपी कॉस्ट गिवन है, 7 रुपी कॉस्ट गिवन है, और मिक्सचर पर वैल्यू आपको 9.24 सेलिंग प्राइस के साथ में गिवन है। इट मीन्स मिक्सचर कॉस्ट 110% value. Why 110%? Including 10% profit. This is 9.24. It means your mixture cost is 8.4. Yes, 8.4. So 8.4, it means your ratio is 1.4 and 0.6, which is equal to 7:3. अब देखिए, आपको गिवन था 27 kg of sugar costing ₹7 per kg. It means इस 3 रेशियो का वैल्यू in terms of quantity is 27 kg. It means one ratio value is 9, and if 1 is 9, so 7 is equal to 63 kg. Now clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question, again a easy question, but the language is important. Yes, guys, any problem to solve this?
Sir, 40 liter. सलोनी का आंसर है 40. ओके. एंड रेस्ट स्टूडेंट्स? So 40. तो कैसे 40 निकाला आप लोगों ने? यस सलोनी. Yes, sir. Milk का quantity 54, water का 0. Then एग्जैक्टली. it, बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट आंसर इज 40. yes, sir. सो मंजीत, डिस्कशन रिक्वायर्ड फॉर दिस वन? यस सर. सो मंजीत, आपके पास मिल्क कौन सा आता है घर पे? मिल्कमैन वाला या अमूल वाला? दोनों. दोनों आते हैं. तो अब जो मिल्कमैन लेकर आ रहा है वो मेरे को बताइए कि आपको प्योर मिल्क देता है? ऑफ कोर्स नहीं. ऑफ कोर्स नहीं. सो ऑब्वियसली वाटर मिलाता है. अब वाटर में क्या मिलाता है? वो क्या बिस्लरी मिलाता है? नहीं. ऑब्वियसली टैप वाटर, है ना? यस सर. सो इन दिस क्वेश्चन आपको मिल्क और वाटर का मिक्सचर गिवन है. प्योर मिल्क का कॉस्ट 54 गिवन है, मिक्सचर का कॉस्ट 45 गिवन है, और वाटर बेटा प्रॉफिट के लिए मिला रहा है, सो ऑब्वियसली वाटर का कॉस्ट 0 कंसीडर करेंगे. ये वाटर फ्री का है. So 45 minus 0, it means 45, and 54 minus 45, it means 9. So clearly your ratio is 5:1 with respect to milk and water. It means जितना water है उसका 5 times milk है. According to question, water का value 8 liter है. It means 5 times milk, so 40 liter of milk. Clear? और अगर वाटर की जगह पे और कुछ होता तो अपन जीरो एज्यूम करते या फिर और कुछ? नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, वो वाटर का केस देगा तभी आप 0 कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज वाटर के अलावा और कोई बहुरत्न में चीज मिला देता वो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर आपको उसका वैल्यू दिया जाता. अब यही क्वेश्चन अगर सऊदी अरब में क्रिएट कर दिया जाएगा तो वाटर का भी क्वांटिटी कॉस्ट दे दिया जाएगा, है ना? ओके. चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपली आप ट्राई कर सकते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन भी आप शायद जज कर सकते हैं. तो शुगर ऑफ कॉस्ट 136 पर केजी, शुगर ऑफ कॉस्ट 141 पर केजी, मिक्स किया गया इन रेशियो 2:1. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मिक्सचर. सो एक्चुअली एवरेज के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो ये वेटेज एवरेज है. अदरवाइज आप जैसे भी डील करना चाहें मिक्सचर से भी डील कर सकते हैं. थ्रू बेसिक अप्रोच जाएं. सो रेशियो 2:3, इट मीन्स 136 वाला शुगर 2 kg है एंड 141 3 kg है. So it means 136 multiply with 2 plus 141 multiply with 3, and total quantity in this situation is 5 kg. तो यहाँ से भी इसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज आप मिक्सचर कॉन्सेप्ट पर डील करेंगे. Yes, sir. 139. यस, 136 एंड 141, चीपर एंड डियरर. मिक्सचर का कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है
रेशियो इज गिवन 2:3. सो यू नो वेरी वेल कि डियरर में मिक्सचर सब्ट्रैक्ट करने पर ये रेशियो आता है, मिक्सचर में चीपर सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आती है. सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ or what cost of mixture should be subtracted from 141 to get this value 2? Obviously this is 139 without any calculation. Is it clear? Otherwise यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपको 139 मिलना है. Everyone got it? Yes, sir. Yes. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. एंड अगेन same type of question discussed in the session of percentage, but this time this question required with the help of mixture. Yes, mixture की हेल्प से सॉल्व करिए और बताइए सेविंग में इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सेवन. कितना बेटा? 7. 7. ओके. यस, आश्वी ऋषिका सलोनी. तो मंजीत थ्रू मिक्सचर किया है या परसेंटेज के थ्रू किया है? परसेंटेज. मैंने तो बैन लगाया था बेटा उस पर. मैं मिक्सर का भी ट्राई कर सकता हूँ, पर मेरे को परसेंटेज वाला इजी लगा. अच्छा, देखिए 3 डिफरेंट फैक्टर्स है आपके पास: इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग. सो मिक्सचर क्रिएट करने के लिए किन्हीं दो वैल्यूज को मिक्स करने पर तीसरी चीज जनरेट होनी चाहिए. ऑब्वियसली इनकम और एक्सपेंस को मिक्स करने पर सेविंग जनरेट नहीं होती. इनकम सेविंग को जनरेट करने पर एक्सपेंस जनरेट नहीं होता. बट अगर एक्सपेंस और सेविंग को जनरेट कर दे तो इनकम बन जाती है. यस और नो? Yes, sir. सो बन गया मिक्सचर. एक्सपेंस एंड सेविंग को मिक्स करके इनकम जनरेट हो रही है. और हिंट के लिए आपको रेशियो भी गिवन था. किसका? एक्सपेंस का और सेविंग का. सो डेफिनेटली इन्हीं का मिक्सचर बनने वाला था. इट इज 3:2 गिवन इन दिस क्वेश्चन. इनकम इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंस इंक्रीज बाय 12%, सो सेविंग इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? अभी ये रिक्वायर्ड है, ध्यान से समझिएगा फॉर दिस क्वेश्चन. 12 minus 10 is equal to 2. It means definitely this one is dearer. ये तो obviously mixture है. और अगर ये dearer है, it means this one is cheaper. Mixture में cheaper subtract करते हैं. So 10 minus what value to get this value 3? Obviously this is 7%. मंजीत clear? यस सर. Without any calculation. आपने percentage में फिर भी कुछ calculate किया होगा in terms of percentage. यस सर. Rest students clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मिक्सचर कंसेप्ट. अगेन बेटा इस क्वेश्चन में फीलिंग आएगी मिस्टर एक्स एंड वाई वाली कि एक्स वाई मेथड से आप सॉल्व कर ले.
बट मंजीत इसके ऊपर बैन है। आपको मिक्सचर अप्रोच ट्राई करना है, एक्चुअली मिक्सचर का सेंस डेवलप करना है, तभी तो एग्जाम्स में यूज कर पाएंगे। यस, टेक योर टाइम एंड डू इट केयरफुली। यस गाइस, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस? देखिए बॉयज, 45 boys and 30 girls. ओके, सो आश्वी कैसे किया विद मिक्सचर? Yes, sir. ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन में गिवन है ईच बॉय गेट 1 रुपी एंड ईच गर्ल गेट 40 पैसा, सो 100 पैसा एंड 40 पैसा। मंजीत, मिक्सचर पर कितना आएगा वैल्यू? मंजीत, आपका वॉइस नहीं आया। चलिए देखिए, 100 पैसा एंड 40 पैसा, एक्चुअली ये डीलिंग हो रही है पर हेड बॉय एंड पर हेड गर्ल की। सो मिक्सचर पर भी पर स्टूडेंट की बात होगी। एक्चुअली ये 48 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूट हुए इन ऑल, इट मीन्स 4800 पैसा आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स। मैंने कहा था सब पर डील एक जैसा करेंगे, लाइक सबके ऊपर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो फिर कॉस्ट आता है, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सब पर परसेंटेज आता है। वैसे यहाँ पर डीलिंग है फॉर वन बॉय फॉर वन गर्ल, तो यहाँ पर भी आएगा फॉर वन स्टूडेंट, और वन स्टूडेंट को सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलता है 64। सो दिस इज 64 इजिली। अब रेशियो मिल पाएगा, दिस वन इज 24 and 100 minus 64 is 36. It means your ratio is what? This is 2:3.
So 2:3 is the ratio for boys and girls out of 75. और 75 के respect में अगर आप break करेंगे तो this is 30 and this one is 45. Clear? Yes, sir. Manjeet Saloni. Yes, sir. यस सर। दूसरा आप इस तरह से भी डील कर सकते थे, लाइक कि अगर मेरे को पर हेड नहीं लेना, सपोज मैंने कहा कि मैं मिक्सचर पर 48 रुपीज ही लूंगा। सो 48 तो आप तब ले रहे हैं जब आप कंप्लीट ऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन आपको कैसे डील करना पड़ेगा, लाइक कि जो 75 स्टूडेंट्स हैं ऑल बिलोंग्स टू बॉयज and each boy get 1 rupee, so total 75 boys get 75 rupees, and each girl get 40 paisa, and suppose total 75 students belongs to girl, so 75 girls and each girl get 40 paisa, so total amount in this situation is 30 rupees. अब यहाँ पर आप 30 रुपीज लेंगे। सो या तो आपने पर हेड लिया या फिर आपने टोटल लिया, और देखिए अब रेशियो अगेन सेम मिलने वाला है। दिस इज 18 and this one is 27. Again, your ratio is 2:3. It means your answer is 30 and 45. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. So next question बहुत interesting question है. And again, this question is solved with help of mixture concept. Again, XY का feeling आता है, but आप वैसे solve नहीं करेंगे। इसके बाद मैं इसके कुछ शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स और बताऊंगा जिसके थ्रू और फास्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस ये सॉल्व, बट इनिशियली ट्राई टू सॉल्व विद मिक्सचर कॉन्सेप्ट। So there are some parrot and some lions. Total heads are 100, total legs are 290. How many parrots? How many lions? Yes, guys. Answer for this one is any problem?
55 and 45. 55 and 45. Okay. मंजीत क्या लगता है, नहीं बनेगा? 1 मिनट हो ही गया ऑलमोस्ट। देखिए इतनी देर में ऐसे 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक्चुअली टोटल हेड्स आपको गिवन है 100 और लेग्स 290। अब बेटा भगवान ने सबको एक सर दिया है, वो पैरट हो या लॉयन हो। सो अगर पैरट के पास भी एक सर है और लॉयन के पास भी एक सर है, सो क्या ये पॉसिबल है कि हेड्स के ऊपर फोकस करते हुए आप मिक्सचर डेवलप कर लें? सलोनी? Yes, sir. हाँ मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि आप हेड्स के ऊपर फोकस करते हुए मिक्सचर जनरेट कर लें? वो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन कि भाई सबके पास एक सर है, तो ऑब्वियसली आपको लेग्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लेग्स में ही डिफरेंस आता है। तो अगर मैं पैरट और लॉयन के ऊपर लेग्स के ऊपर फोकस करता हूँ तो इजीली आपका मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा। तो भाई पैरट के पास कितने पैर? 2, 2। और लॉयन के पास 4। 4. अभी अपन पर हेड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिक्सचर पर भी एक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, तो टोटल 290 लेग्स आउट ऑफ 100 एनिमल। सो पर हेड ये वैल्यू आ गया 2.9। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. 2.9 का मतलब ऐसा नहीं कि आप ये मान लें कि उसका एक टांग टूट गया है, ऐसा कुछ नहीं। वो एक फिगर जनरेट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 4 and 2.9 it means 1.1, and 2.9 minus 2 it means 0.9. So your ratio is 11:9 with respect to parrot and loins. और अभी आपने टोटल 100 में ब्रेक किया। वाई 100? क्योंकि टोटल तो ऑब्वियसली 100 है ना। सो 55 and 45। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी देखिए आप टोटल के रिस्पेक्ट में भी काउंट कर सकते थे कि लाइक आपने को यहाँ पर एज इट इज 290 कंसीडर करना है, तो ये अपन ने टोटल फिगर ले लिया 290। तो अब पैरेट और लॉइन पर कैसे डील करेंगे कि लाइक जो 100 हेड्स हैं ऑल बिलोंग्स टू पैरेट, सो टोटल लेग्स हो जाएंगे 200। एंड सपोज ऑल बिलोंग्स टू लॉयन, सो टोटल लेग्स हो जाएंगे 400। अभी आप सॉल्व करते हैं तब भी आपको सेम वैल्यू मिलती है 110 एंड 90। इट मीन्स रेशियो इज सेम 11:9 for parrot and loin and 55 parrot and 45 loins। सो या तो टोटल के रिस्पेक्ट में या पर हेड के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पर हेड वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा, लाइक कि कोई फिगर ऐसा आया कि जैसे अभी तो अपन ने 290/100 किया विच इज इक्वल टू 2.9 कंप्लीट वैल्यू मिली। लाइक मिक्सचर पर 4/3 जनरेट हो रहा है, सो एक्चुअली दिस इज 1.3333 एंड सो ऑन चल रहा है ना। तो ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा वैल्यू, तो अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं 1.33, बट एक्चुअली 1.33 नहीं होता। सो इस सिचुएशन पर या तो आप इसको फ्रैक्शन में ही डील करेंगे, अदरवाइज फिर आप टोटल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। क्योंकि अगर कहीं मिक्सचर पर ऐसा वैल्यू आ गया जो कंप्लीट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको रिजल्ट गड़बड़ दे देगा। समझ रहे हैं ना? यस सर।
Yes, sir. चलिए अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन आप मिक्सचर से सॉल्व करिए, फिर मैं इसका एक और शॉर्टकट अभी आपको जस्ट क्लियर करता हूँ. But initially try to solve this question is again with mixture concept. In a parking, there are some two-wheeler, some four-wheeler. Total 520 wheels and 175 vehicles. So obviously आप wheels के ऊपर फोकस करते हुए mixture generate करेंगे. और स्टेपनी किसी भी व्हील में कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स फॉर दिस क्वेश्चन. Yes guys, answers. देखिए इस सिचुएशन पर मे भी आपको पर हेड में कुछ प्रॉब्लम आए. सो टोटल 175 व्हीकल्स है. If all belongs to two wheelers, so number of wheels in two wheelers are 350. And if all belongs to four wheelers, so number of wheels are 700. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. And in mixture आपको given है total 520 wheels. So easily get the ratio in between two wheeler and four wheeler. So the difference of 700 and 520, which is equal to 180, and this one is 170. It means your ratio is what? It is 18:17. Is it clear, everyone? Yes, sir. और अब तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप तो एटलीस्ट आंसर्स बताइए भाई. नंबर ऑफ टू व्हीलर रिक्वायर्ड है. सो टू व्हीलर इट मीन्स 17 आउट ऑफ 35. तो आउट ऑफ 175 कितने हुए? 85 हो गए ना? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर. सलोनी तुम बीच बीच में गायब कहाँ हो जाती हो? सर यही है. चलिए क्या. सो अभी तक किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो फिर मैं इसके शॉर्टकट्स पर आऊँ. चलिए अब समझते हैं. टोटल 175 व्हीकल्स थे and 520 wheels थे. Out of this 175 vehicles, there are some two-wheeler
and some four-wheelers. Obviously, in two-wheeler, there are two wheels. In four-wheeler, four wheels. So at least common figure two wheels है, वो दोनों में है. Two-wheeler में भी है, four-wheeler में भी है. Yes or no? Yes, टू sir. व्हील्स तो एटलीस्ट दोनों में कॉमन है. सो जो कॉमन फिगर है वो टू व्हीलर का है. इट मीन्स टू व्हील्स का है. सो इस सिचुएशन पर अगर आप सारे के सारे टू व्हीलर कंसीडर कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 175 vehicles and all belongs to two wheeler, it means in this position your total number of wheels are 350. Is it clear everyone? Yes, sir. हाँ. But question says total number of wheels are 520. It means in this position, how many extra wheels? 170 extra wheels. And these extra wheels definitely due to four-wheeler. And four-wheeler के पास with respect to two-wheeler, two wheels extra है. So उसी extra से आपने divide कर दिया. So easily आपको result मिल जाता है. Point clear हो रहा है बेटा? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, ये अपन ने यहाँ पर भी जो कैलकुलेट किया है गड़बड़ कैलकुलेट किया है. ये गड़बड़ मतलब किया तो ठीक है, मैं टू व्हीलर के रिस्पेक्ट में बात करी थी, तो आपने 175 में से 85 सब्ट्रैक्ट किया. ये तो फोर व्हीलर आया था ना, तो आपके टू व्हीलर की वैल्यू 90 आ रही है. यहाँ से भी जैसे ही आपने फोर व्हीलर की वैल्यू निकाली 85 आई, और ऑब्वियसली आउट ऑफ 175 अगर 85 फोर व्हीलर्स हैं, सो रेस्ट ऑफ 90 टू व्हीलर्स हो जाएंगे. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अभी देखिए सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस किया था आपने पैरेट और लॉइन वाला, इसको भी इस कंसेप्ट से कर सकते हैं कि हेड्स आर 100 एंड लेग्स आर 290. सो दीज हंड्रेड्स हेड्स विद पैरेट एंड लॉइंस. पैरेट के पास दो पैर हैं, लॉइन के पास चार पैर हैं, तो एटलीस्ट दो पैर तो सबके पास है, और वो है एक्चुअली पैरेट के पास. तो अपन सारे के सारे अगर पैरेट कंसीडर कर लेते हैं, सो आउट ऑफ 100 ऑल बिलोंग्स टू पैरेट, इट मीन्स टोटल 200 लेग्स हो जाएंगे. बट क्वेश्चन कहता है 290, इट मीन्स 90 एक्स्ट्रा लेग्स, और 90 एक्स्ट्रा लेग्स ड्यू टू लॉयंस, और लॉयन के पास दो एक्स्ट्रा पैर हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरेट. मैं एक्स्ट्रा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना, इसलिए जस्ट 2 से आपने डिवाइड किया एंड गेट योर आंसर विच इज इक्वल टू 45 लॉयंस. एंड आउट ऑफ 100 45 लॉयंस, इट मीन्स रेस्ट ऑफ 55 पैरेट. तो ये एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट हो गया टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलिए अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन और था, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम कॉन्सेप्ट. यस, ट्राई करिए जरा, बनता है कि नहीं आपसे. यस, स्पीडली करिए. यस गाइस, मंजीत हो गया बेटा? सर. बेटा 75 स्टूडेंट्स, there are some boy and some girl. Each boy get 1 rupee and each girl get 40 पैसा, so it means 40 पैसा तो सबको मिला है.
Yes or no? यस सर, हो गया. So if all belongs to girl, so 75 and all girls, it means total amount distribute हुआ 40 पैसा के अकॉर्डिंग 30 रुपीज. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 48 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अभी 18 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ड्यू टू बॉयज. और बॉयज को गर्ल के कंपैरिजन में 60 पैसा एक्स्ट्रा मिला है. एक्स्ट्रा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 40 पैसा इसमें इंक्लूड हो चुका है. सो उसी 60 पैसा से आपने डिवाइड किया. नाउ इजीली आपको 30 बॉयज मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स 30 बॉयज, इट मींस रेस्ट ऑफ 45 गर्ल्स. नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. चलिए स्पीडली कैलकुलेट करिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. किसी भी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं. यस गाइस. एनी प्रॉब्लम? आप तो 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्या प्रॉब्लम है ऐसा? Sir, 27. 27. 27. सलोनी? तो डिस्कस करें फिर. देखिए टोटल 90 कॉइन्स in the form of either 20 paisa or 50 paisa, and total amount in terms of rupees, sorry, in terms of paisa is 3690 paisa. So if all belongs to 20 paisa, why? Because 20 paisa तो 50 पैसा में भी included है. So इस पोजीशन पर जो आपका अमाउंट बन रहा है which is equal to 1800 पैसा. अब देखिए टोटल 3690 है, जिसमें से 1800 पैसा ड्यू टू ऑल 20 पैसा. इट मीन्स रेस्ट अभी भी 1890 बन रहा है. सो जो एक्स्ट्रा वैल्यू बन रहा है 1890, दिस इज फॉर ओनली फॉर 50 पैसा कॉइन्स. एंड 50 पैसा में विद रिस्पेक्ट टू 20 पैसा 30 पैसा एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूडेड है, 30 पैसा. सो उसी 30 से आपने डिवाइड कर दिया. सो 63 कॉइन्स आ गए. किसके बेटा? ये 50 पैसा के आ गए. और आउट ऑफ 90, 63 अगर 50 पैसा के कॉइन्स हैं तो रेस्ट ऑफ 27 बिलोंग्स टू 20 पैसा. नाउ क्लियर एवरीवन?
यस सर। Yes, sir. लोगों के नेटवर्क बड़े प्रॉब्लम देते हैं। ऋषिका का तो शुरुआत से ही प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा रेखती हुई आवाज आती है कटते कटते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Now the language says a vessel contain 40 liter of milk. From this mixture, 4 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated 2 times more. How much milk now contained by the vessel? Now. So अब ये तो इजी क्वेश्चन है और इसमें बेटा मिक्सचर का कंसेप्ट नहीं लगने वाला, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। Actually question based on ratio. The answer for this question is 28. हर बार मिल्क ही निकालेंगे या फिर सेकेंड बार में मिल्क और वाटर का दोनों का जो मिक्सचर होगा वो निकालेंगे? ये तो आप देखिए, नहीं, सिर्फ मिल्क निकालेंगे तो 28 है, और मिक्सचर में से निकालेंगे तो नहीं होगा। बाकी सिर्फ मिल्क निकालेंगे कैसे? हाँ, वही इसी वजह से 28 हो गए नहीं वो। नहीं, जनरली 28 आ जाता है, इसीलिए मैंने 28 बोला। सो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में तो प्योर मिल्क निकलेगा। अगर 40 लीटर मिल्क है तो फर्स्ट टाइम में तो मिल्क निकलेगा, बट नेक्स्ट केस में ये मिल्क नहीं मिक्सचर बन गया। तो अब जब 4 लीटर रिप्लेस किया जाएगा तो उसमें कुछ पार्ट मिल्क का होगा और ऑब्वियसली कुछ वाटर का होगा। सो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए क्या डिस्कस करते हैं फॉर दिस वन। सो इन दिस सिचुएशन आपको एक फॉर्मूला डील करना है फॉर रिमेनिंग मिल्क, दैट इज a in bracket a minus b upon a raised to the power n, and in this formula a is the initial quantity of milk and according to question this is 40 liter. B is taken out part, which is equal to 4 liter, and n means number of times, total कितने बार ये प्रोसेस करी है, so total 3 times ये प्रोसेस करी है। So through this formula आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करिए और उसके थ्रू आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका। फॉर्मूला क्लियर हो गया ना? Yes, sir. स्पीडली अप्लाई करिए। Forty minus 4, it means 36 by 40 raised to the power 3. It means actually this is 9 by 10 raised to the power 3. So 9 raised to the power 3, it is 729 upon 1000. तो ये सॉल्व करना है and your correct answer is 29.16 liter अगर आपका कैलकुलेशन राइट है। यस सर। So point is clear? Yes, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन इसका और ट्राई करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से भी। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ में है, सो डू इट केयरफुली। 2 minutes you have.
43.74। Beta, 43.74 is the quantity of milk, but in this question required percentage of milk at last. मंजीत क्लियर हुआ? यस यस। हम्म। यस बेटा, हो गया। एक्चुअली अगर आप फॉर्मूले के थ्रू चल रहे हैं तो इट इज 60, then 60 minus 6, it means 54/60 raised to the power 3. Again बेटा ये 9/10 बना, it means this is 60 multiplied with 7 to 9 upon 1000, and after solving this you will get 43.74 is the quantity of remaining milk. But finally आपको परसेंटेज की नीड थी, so at last आप क्या कैलकुलेट करेंगे? 43.74 is remaining milk out of 60 to get the percentage value, multiply by 100. Why? Because percentage is the part out of 100. Finally your answer is what? 72.9. Is it clear everyone? यस सर। Yes, sir. Yes. चलिए अब थोड़ा फॉर्मूले की और डिटेल पर चलते हैं। Actually the formula, this part only, a minus b upon a raised to the power n. This part shows the part of milk or ratio of milk at last. अब इसमें लाइक कि अपन कहते हैं सपोज 2 out of 5 आपका मिल्क है, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर आपको कंप्लीट मिल्क मिल जाता है। तो वैसे ही आपके पास टोटल वैल्यू ए के फॉर्म में है ना, सो इनिशियल वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करने पर आपको रिमेनिंग मिल्क मिल जाता है इन दिस फॉर्मूला। और अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मिल्क चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मिल्क, तो अभी आपको मैंने डिस्कस किया कि दिस इज a माइनस बी अपॉन a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 100. व्हाई? बिकॉज परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100. तो अगर आप टोटल इनिशियल वैल्यू को 100 कंसीडर कर लेंगे तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखिए ये तो दोनों क्वेश्चन में सेम वैल्यू आ रही थी ना, दिस इज 7 to 9 upon 1000। अब अगर आपने इनिशियली ए से मल्टीप्लाई किया तो फिर 43.74 आया विच इज द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिल्क। फिर फाइनली आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक बार और कैलकुलेट करना पड़ा। अगर आपने यहीं पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाता है 72.9%। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मंजीत गॉट इट? यस सर। अब देखिए ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है पहले वो भी समझते हैं। लाइक जो प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था कि 40 लीटर मिल्क था, आउट ऑफ द 40 लीटर आपने 4 लीटर निकाला, सो 4 लीटर इज 10% ऑफ 40, सो आपके पास बचा कितना? 90%। अब नेक्स्ट केस में रिमेनिंग मिल्क कितना ही है। अभी जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपके पास इस रिमेनिंग मिल्क का 90% बचेगा। और थर्ड केस में अब रिमेनिंग मिल्क कितना है? इसका 90% बचेगा। और वही आपको 9/10 रेज़ टू द पावर 3 दे रहा है जो फॉर्मूला ये कहता है।
This is 40 into 9 by 10 raised to the power 3. So I think फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. ओके. यस सर। चल इस क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करिए. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार टेकन आउट क्वांटिटी चेंज हो रहा है. इनिशियली 10 लीटर मिल्क रिप्लेस कर रहे हैं, देन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं. So at last, how much milk is there? So formula is a minus b upon a raised to the power n. बट कब? जब आपके पास हर बार टेकन आउट क्वांटिटी सेम होती है. अब इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस इज a माइनस बी वन अपॉन ए एंड a माइनस बी टू अपॉन ए. फर्स्ट टेकन आउट क्वांटिटी इज b1 एंड सेकेंड वन इज b2. अगर यही दोनों सेम होते तो ये होता है a माइनस बी रेज टू द पावर 2. इज इट क्लियर? So 200 minus 10 upon 200 and 200 minus 20 upon 200. फाइनली सॉल्व करने पर आपको 171 लीटर मिलता है. यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। अदरवाइज जो मैंने भी आपको डिस्कस किया था इनिशियली कि आउट ऑफ टोटल 200 लीटर इनिशियली आपसे 10 लीटर रिप्लेस कराया जा रहा है. सो 200 के रिस्पेक्ट में 10% होता है 20. सो 10 लीटर इट मीन्स 5% निकल गया. 5% निकलने के बाद रिमेनिंग बचता है 95%. और अब चूंकि रिमेनिंग मिल्क इतना है और अब 20 लीटर निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 200, इट मीन्स अब 10% निकल रहा है, इट मीन्स 90% बच रहा है. आप इसे भी सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट अगेन 171 लीटर. सो क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए, सो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. A vessel is full of milk. From this mixture, 15 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is repeated once more. At the end, ratio of milk and water is 16:9. Find initial amount of milk. अब आपको फॉर्मूले का सारा कंसेप्ट पता है. इजीली डूएबल क्वेश्चन है. Hardly 2 minutes required. Maximum 2 minutes. बाकी कंसेप्ट क्लियर है तो 30 सेकेंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है. Yes, guys. Answers?
Any problem to solve this? एक्चुअली इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का सिर्फ इतना पार्ट यूज होना है. दिस इज a माइनस बी अपॉन a रेज टू द पावर n. इसको मैंने क्या बताया था, ये क्या है बेटा? अभी डिस्कस किया था. रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ मिल्क और रेशियो ऑफ मिल्क. समझ आ रहा है ना? सो ये आपको एट द एंड रेशियो ऑफ मिल्क ही तो गिवन है. दिस इज 16:9 एंड ये गिवन है मिल्क एंड वाटर का रेशियो. सो ओनली मिल्क के रिस्पेक्ट में दिस इज 16 आउट ऑफ 25. यस और नो? यस सर. So taken out part is 15. A is required. So A minus 15 upon A raised to the power 2. This is 16 out of 25. It means your A minus 15 upon A is equal to 4/5. Cross multiply करिए, solve करिए and get your answer for initial milk which is equal to 75 liter. Now clear everyone? Yes, sir. So anyone having any doubt in this complete session or everything is fine? Yes, Saloni, Ashvi, Manjeet. No doubts, sir. So this is the end of the session. Thank you everyone. Good day. Yeah. Thank you, sir.